अच्छा लास्ट वीक पता किथे लैंड होया? किथे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड? जी सर, वो मेरे भांजे दा WhatsApp दे उत्ते मैसेज आया सी ना। आपका भांजा स्कॉटलैंड होता है? किंग चार्ल्स भांजा है ना मेरा। ओके। WhatsApp दे उत्ते मैंने मैसेज कीता ते मैसेज भी पंजाबी विच हैं? मैंने कहंदे ने मामू जी हाँ। भूल ते नहीं गईयां यादां मेरियां। मैं फिर कीती है कॉल बैक। अच्छा मैं क्या की मसला? कहते ने मामू मिस यू अ लॉट। ओए होए कटिया फिर मैं डाला मोड़िया फिर कराची वाले पास। अच्छा उथों नाल फ्लाइट लईए ते पहुंचिया हीथ्रो। ओहो गया बकिंगम पैलेस। ओहो मारिया उस गार्ड ने मैंने सलूट। आहा आ मैं जान लगे तो मैंने कहंदे ने किधर? अच्छा जी ओ मैं क्या भांजे ने फोन किया यार। हाँ। ओ कहंदे ने ਤੁਹਾਡਾ भांजा साहब इत्थे है ही नहीं। हैं? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ। ओह ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੀਮੂਜ਼ੀਨ ओए होए ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ। ਆਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। अच्छा ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ। ओए होए ਬੈਲਮੋਰ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ना करें ईमान ਨਾਲ ਐਸਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ। किंग चार्ल्स किंग चार्ल्स ओ मैं क्या नो मेरी किथे हैगी है? हाँ। मैंने कहते ने नो आपकी जरा गई हुई है। आजकल कहते ने आपको पता है कि विंटर शुरू हो रहा है हाँ। समर जा रहा है। ओए होए ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲਾਂ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਆਫ 90% ਆਫ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੀਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ 5-5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ। ਹਾਂ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ 5-500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ। ओहो ਜੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਟੀਵੀ ਲਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ। हैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किंग चार्ल्स भी पाकिस्तानी ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। वाह ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ हाँ ਇਨ ਸਮਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ। हाय हाय ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾ ਦੇ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਯਾਰ। वो क्या ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਓ। खलीलुर रहमान कमर साहब ਜੀ से? ਸਰ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ओरिजिनल ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਗੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। यार मेरे हाथ ते हाथ मार के ते कहंदे ने ओ सारी जिंदगी सफाइयां ही देंदे आए आ। अच्छा ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ओए होए ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। हाँ हाँ लिखवाओगे कैसे ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਲਾਓਗੇ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ वो कौन ਸੈਫੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा डायरेक्ट बाई सैफी हसन ओए होए होए। साहब। मैं क्या दोवें बिजी ने ओए होए। सालों का टाइम नहीं है। ओए होए होए। लेकिन मैं क्या डोंट यू वरीड अबाउट। क्यों मैं उन्होंने पाउंड विखावांगा ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਵੱਲ। लेकिन देखो मैं लकी साबित होया हुणे कास्ट होया ते ड्रामा आ गया सर। ਲਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਫਿਰ। सर ए हुंदा लकी बंदा किंग चार्ल्स के कैरेक्टर फिर इनसे कराती हैं। और मैं फिर निकलदे उन्होंने पूछा मैं क्या सर जी कोई ना नू भी सोचा है कि भाई खाली ड्रामा लिख देना? ओ। ना मैं क्या वो हुंदा जिहदी वजह तो ड्रामा सुपरहिट हुंदा। ओए होए कहंदे ने फिर सब तो अच्छा ना तो यही है क्या मैं बादशाह नहीं हूं। हाँ ना ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ओके ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਓ। मैं क्यों कराऊं खुद करें ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। नहीं नहीं आप खुद करें ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਪਾਉਂਡ डन है डन सर। ਪਾਉਂਡ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਾਉਂਡ। ओए होए ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਓਕੇ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हाँ ਉਹ MCA
यस मैं भी उत्थे पढ़िया ना जी। आप कहाँ से उससे पढ़े मैं उत्थे जिन्नी बारी लंघिया मैं बोर्ड पढ़िया होगा। कॉलेज फेलो हो गए ना। नहीं इस तरह नहीं होते कॉलेज सर फेलो। कमाल विजुअल आर्टिस्ट ने माशाल्लाह वरदा जी इस ਵੇਲੇ टॉप ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ वरदा जी। ਯੈਸ ਵਰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ फॉलोअर्स। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨੇ बस देखिए ਸਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖੋ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ना ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ वेलकम बैक जी रबानिया। वर्दा आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? हाँ मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ क्लीशे एक्टर्स हैं कुछ फेवरेट। कौन है? मुझे जॉनी डेप पसंद है, मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो की भी अच्छी लगती है एक्टिंग। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? आहिस्ता आहिस्ता आ रही होंगी ना पाकिस्तान की तरफ यार। पाकिस्तानी मुझे सनम सईद की अच्छी लगती है एक्टिंग। सनम सईद। मेल कभी में मैंने कोई? ड्रामा देखा था जब मुझे पता लगा कि आप इस शो में हैं तो तभी देख दिया आपने? हाँ। सारा ही कौन देख सा लिया? ड्रामा देखा? कौन सा वाला इतनी जो स्पीड में YouTube देखा? पे था नाम नहीं। इनके साथ कौन था उसमें? जॉनी डेप। अल्लाह करेगा भी ऐसा देना। तुम्हारे मुंह में घी से कर। आप बताए कौन था इनके साथ? आप उसमें थे अलिफ। अलिफ में बिल्कुल जो थे वो मैंने हमजा थोड़ा- वासी साथ थे इनके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो- ठीक है अलिफ बिल्कुल। अच्छा उन्होंने मेरा फौरन ज़्यादा सज्जल के साथ काम था। सज्जल के साथ? हमजा के साथ एक ही सीन था मेरा। हाँ नहीं मगर वो शुरू में टाइटल में तो आ गया। जी सवाल अगला किनका है? अस्सलाम वालेकुम जी, सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरबाज कलीम है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई किरदार मुश्किल होता है तो आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं? ये वैसे इंटरेस्टिंग है कि पहले आप एज एन अदाकार किस तरह उसकी तैयारी करते हैं? अच्छा मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने टेलीविजन के लिए कभी किसी की तैयारी वैयारी नहीं की। अच्छा ठीक है। मैंने थिएटर में बहुत किया इस तरह से। ठीक है। थिएटर में हम लोग किरदार को इवॉल्व करते हैं। लाइक हम शुरू में वर्कशॉप्स करते हैं, वर्कशॉप के बाद कई दिन बाद हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आता है, तो डायरेक्टर को उससे पहले खाली स्क्रिप्ट पता होता है, वो उसके लिहाज से हमें कुछ थिएटर एक्सरसाइज करवा के उस कैरेक्टर को निकलवाता है और फिर हमें लाइनें मिलती हैं कि यार ये लाइनें बोलनी है। ये तरीका मैंने थिएटर में सीखा है, लेकिन टेलीविज़न में हमारे पास इस तरह काम होता है या इवन फिल्म में हमें आमतौर पे अपने सीन्स मिलते हैं और वो शायद बहुत बहुत जल्दी मिल गए तो हफ्ता पहले मिल जाते हैं, तो बस आप लाइनें याद कर सकते हैं। मगर सॉरी उसकी क्या वजह उन स्क्रिप्ट्स का देर से आपको मिलना है एज एन एक्टर, या फिर ये कि मे बी उसके अंदर थिएटर वाली जो तैयारी होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इतनी लेयरिंग नहीं है? मुझे लगता है कि अगर वो की जाए, अगर एज एन एक्टर आप एज एन एक्टर अगर वो करे तो शायद उससे यकीनन दैट विल मेक अ डिफरेंस, लेकिन शायद हम लोग अभी तक उतना सीरियसली ले नहीं रहे अपनी टेलीविजन एक्टिंग। और जब आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं तब भी क्या आपको तैयारी के लिए कभी होता है कोई एक्टर आपके पास कहेगा सही भाई मुझे ये नहीं आ रहा समझ यार? उसके अंदर भी देखो ना, वैसे हमारे पास होते हैं 6, 7, 8 कभी कभी सीन्स एक दिन में करने के लिए, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, मेरे साथ आसानी ये है कि मैं खुद एक्टर हूँ और क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट अजबर किया हुआ है तो लिहाजा मुझे पता है वो कैरेक्टर किस तरह से उसको डिलीवर करेगा, मैं उसको कहता हूँ मैं तुझे करके बताता हूँ, तो वो आसान हो जाता है मेरे लिए। अगेन इसलिए नहीं कि मैं कोई शॉर्टकट ढूंढता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्तिसाम सईद है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके ख्याल में ड्रामे में असल हीरो कौन होता है, डायरेक्टर या फिर अदाकार? असल हीरो राइटर होता है एक्चुअली। सारी कहानी जो है ना वो राइटर की, मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बता रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि जो गेम है ना वो राइटर के हाथ में होता है। अगर राइटर ने रूह डाल दिए तो फिर वो कायम रहती है, तो हीरो मैं समझता हूँ राइटर होता है। सुना तुमने कैसर? सर हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहां पर अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। अच्छा। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। अच्छा पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप खेल लें। उन्होंने आपको आगे करती है। लीजिए फिर सभी भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? मैं तो एक्टिंग का कोई रोल जाने ही देना चाहता, मैं ही करना चाहता नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये आपकी बायोग्राफी है, आपने बताना है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब हुमायूं सईद
और जनाब फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहद रजा मीर, जनाब फरहान सईद और जनाब जाविया रिजाज। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? फरहान के साथ सेल्फी लेंगे। किसको स्माइल देंगे? आहत को स्माइल देंगे। तो जाविया बच्चा बेचारा हमारा बच्चा, मैं इतना फ्रैंक हूँ, हाथ से कह दूंगा भाई तुम्हारा फ्लोर आ गया, जाविया को स्माइल दे दी। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रहे हैं। हाँ ठीक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी अच्छा और फवाद खान। यार ये तो बड़े खतरे, जनरल नॉलेज पे चले। विच इज द हॉटेस्ट सिटी इन पाकिस्तान? जैकोबाद। बिल्कुल सही जवाब है। सैफी साहब ने रिस्क लिया है और कामयाब ठहरे हैं। सैफ भाई आगे चलते हैं। सर ये बताइए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के ना जरा शॉट लेने के लिए चले जाएंगे। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी डायरेक्टर, नदीम बेग डायरेक्टर और यासिर नवाज डायरेक्टर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, नदीम बेग। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? नबील को जवाब दे सकता हूँ मैसेज पे। ठीक है, और बाहर निकल जाएंगे अभी आप शॉट लेने के लिए। यासिर की कॉल। हाँ यासिर दोस्त है, उससे बाद में। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। अच्छा। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर, मुस्तफा अफरीदी और जनाब शहजाद कश्मीरी। जनरल नॉलेज। Who was known as the flying horse of Pakistan? फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर भी थे ना? नहीं नहीं अच्छा, फिर सलाउद्दीन नहीं। हॉकी के भी नहीं थे। सीन हॉकी से के शुरू। थे। हाँ। हॉकी के थे। सलाउद्दीन नहीं थे तो फिर वो थे, हाँ मैं समझ गया, मूंछों वाले, हसन सरदार। नहीं सर, गलत हो गया सर, अब आगे चलना पड़ेगा मुझे। बहुत क्लोज आए थे आप। समीउल्लाह खान थे। मगर अब आप आगे निकल चुके हैं। What is the only mammal that cannot jump? The whale? No, whale can jump. Bats? जवाब गलत हुआ और हम डिसॉल्व करेंगे एलिफेंट्स। जी वर्दा जी आपकी बारी है। आसान आसान कुछ। आसान से चलिए ये बताइए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं आपके पास हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। फवाद खान। ये बताइए, आप भी चांद पे जा सकती हैं, किसी को साथ लेके जा रही हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अनवर सईद साहब और RM नईम साहब। अनवर सईद साहब को छोड़ दो। अनवर सईद साहब को छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद, बाबर अली और अदनान सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। स्माइल किन को दे रही हैं? बाबर अली। और फ्लोर आ गया अदनान सदीकी। ज्यादा खुशी सही भाई कोई है इस बात में। ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। टाइटैनिक डूबेगी? नॉट नेसेसरली। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब होंगे। एक खामोश सफर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब सैफी हसन। इनको दे दूंगी, वो किसी और के साथ मजाक करके ले लेंगे। मजाक करके ले लेंगे मतलब बीच समुद्र में वो किससे मजाक करेंगे? डूबते हुए जुगत थोड़ी होती है, वो तो सीधा बड़ा बड़ा बड़ा। डूबती हुई जुगत वैसे ही अच्छा है, डूबते हुए भी जुगत कर लेंगे। मगर सैफी साहब सर थैंक यू सो मच जी आपका। Everyone, thank you so much for being on the show. वर्दा आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you and thank you so much everyone.